वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code BEGC 131, Individual and Society. So overall in this assignment there are three sections and there are questions contained in it carrying marks. Let's start discussing the assignment and let's start with section A. There are three sections in this assignment and a student is supposed to attempt all the sections. Let's start from question number 1. Read the following passage and answer the question in your words. So this is basically an unseen passage provided in the assignment for which you need to read and answer. Let's discuss the questions given. Why there is no way to strictly limit the effects of plastic bags on the environment. Let's discuss the answer. There is no way प्लास्टिक बैग्स को स्ट्रिक्टली लिमिट करने का कोई भी तरीका नहीं है ऑन द एनवायरनमेंट बिकॉज क्योंकि प्रॉपर डिस्पोजल मेथड सिस्टम की ज़रूरत है जो हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ आर प्लास्टिक बैग्स डेंजरस फॉर द सी लाइफ. एक्वेटिक स्पीशीज या सी लाइफ के लिए प्लास्टिक बैग्स कैसे डेंजरस है. लेट्स डिस्कस द आंसर. These bags are very dangerous. Aquatic marine species के लिए plastic bags बहुत ज़्यादा dangerous है, especially for those of the mammal variety. Any hunting mammal can easily mistake the size, shape, and texture of the plastic bag for a meal and find its airway cut off. Moving on to the next question. Why it is difficult to recycle plastic bags? Plastic bags को recycle करना difficult क्यों होता है? Let's discuss the answer. While it's a noble thought, ये एक noble thought है to place the plastic bags in recycling bin every week. हर हफ्ते plastic bags को recycling bin में रखना बहुत ही noble thought है. Studies have proven, ये पाया गया है that there are very few recycling plants. ऐसे बहुत कम रिसाइक्लिंग प्लांट्स अवेलेबल हैं जिनसे प्लास्टिक बैग्स को रिसाइकिल किया जा सकता है. मोस्ट म्यूनिसिपैलिटीज ईदर बर्न देम, या तो प्लास्टिक को जला दिया जाता है या फिर उसे लैंडफिल के लिए सॉर्टिंग मेथड के बाद भेज दिया जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना काफी एक्सपेंसिव हो सकता है. Moving on to the next question. What are the alternatives to plastic bags? Plastic bags को यूज करने के अलावा क्या क्या alternatives है? Plastic bags एक possible option है but ये साथ में environment पर बहुत ज़्यादा impact create करते हैं. The use of trees to increase the production of paper products will have a negative environmental effect. Reuse करना plastic bags को इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ रीजन्स में दैट वांट टू आउटलॉ द प्लास्टिक बैग्स ऑल टुगेदर. प्लास्टिक बैग स्ट्रॉन्ग है रिसाइकल्ड मैनर में और दे आर मोर ड्यूरेबल और उन्हें 3 to 5 ट्रिप्स पर यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. द टाइटल गिवन टू द पैसेज इज हार्मफुल प्लास्टिक बैग्स. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ में प्लास्टिक बैग्स के हार्मफुल इफेक्ट को इलिस्ट्रेट किया गया है. Let's discuss question number 2. Use the following words in sentences of your own. नीचे दिए गए शब्दों को sentences की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए. Number 1. Melange. Melange. Her book presents an interesting melange of ideas. Next part is whooping. Whooping. We just got whooped by the tigers. Next word given is elevation. इसका sentence discuss करते हैं. The city is at an elevation of 2000 meters. So basically we can use any sentence of your choice where these type of words fit in best. Next is legendary. He became editor of the legendary Indian newspaper The Hindu. Next word given is multicultural. The country has a rich multicultural heritage. Let's discuss section B. Question number 1. Write a speech on the protection of wildlife. Wildlife के protection को ध्यान में रखते हुए speech लिखिए. Let's discuss the answer. Hello all. Wildlife एक precious gift है भगवान द्वारा दिया गया अर्थ के लिए. Wildlife
नॉट ओनली केटर्स टू वाइल्ड एनिमल, ये सिर्फ वाइल्ड एनिमल को ही रेफर नहीं करता, लेकिन साथ में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स, अनडोमेस्टिकेटेड फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि बर्ड, इंसेक्ट्स, प्लांट, फंजाई एंड इवन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस, नेचर में एक हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए अर्थ पर एनिमल्स, प्लांट्स और मराइन स्पीशीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है। ईच ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पर एक यूनिक प्लेस है फूड चेन में, जो कंट्रीब्यूट करता है इकोसिस्टम को अपने ही एक स्पेशल तरीके से। आज मेनी ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है लैंड डेवलपमेंट के लिए एंड फार्मिंग बाय ह्यूमंस। पोचिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फर, jewelry, meat and leather are great factors contributing to wildlife extinction. इन सारी एक्टिविटीज से वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे एक्सटेंड होती जा रहा है। इफ सून नो stringent steps are taken, जल्द ही अगर स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये स्पीशीज ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी एंड दे विल बिकम एक्सटेंट स्पीशीज। द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का एक्सटेंट हो जाना ह्यूमन लाइफ पर और नेचर पर दोनों पर ही बहुत सीवियरली इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो फॉर अस एज ह्यूमंस इट बिकम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्लानट को, वाइल्ड लाइफ को और खुद को बचा के रखें। Moving on to the next question. Write a dialogue between two friends. दो friends के बीच dialogue लिखिए discussing about the importance of conservation of the environment. Environment को conserve करना कितना important है, इस topic को ध्यान में रखते हुए दो friends के बीच एक dialogue लिखना है. Let's discuss the answer. For example, here there are two friends written as Sumit and Arun, और हम कोई भी और example भी consider कर सकते हैं। हेलो अरुण, हाउ आर यू? सुमित अरुण से पूछता है तुम कैसे हो? अरुण रिप्लाइज आई एम फाइन एंड यू? सुमित आई एम ऑल्सो फाइन बट वाई डू यू लुक सो वरिड? सुमित पूछता है कि तुम इतने चिंतित क्यों हो? अरुण कहता है यस यू आर राइट, आई एम समवट वरिड अबाउट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। डे बाय डे जो एनवायरमेंट का पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। ओ यस, आवर एनवायरमेंट इज इन ग्रेट डेंजर, हमारा एनवायरमेंट सीवियरली पॉल्यूट हो रहा है। अरुण कहता है यू आर एब्सोल्युटली राइट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो इतनी एक्यूट है कि ये बहुत मेजर थ्रेट बन चुका है ह्यूमन बींग्स के लिए और साथ ही साथ एनिमल्स के लिए। सुमित सेज एग्जैक्टली, बट व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? तुम इसके बारे में, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्या सोचते हो? अरुण रिप्लाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज सीरियस, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं। Sumit says absolutely. Besides increase in the world temperature, जो बढ़ता टेम्परेचर है अर्थ का, is the result of environmental pollution. What is your idea about it? अरुण says I agree with you. मैं तुम्हारी बात से सहमत करता हूँ, साथ ही साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि प्लांट्स और एनिमल्स फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से। Sumit says exactly, साथ साथ ice is also melting and the water level of sea का water level rise हो रहा है environmental pollution के। So basically इस conversation में environmental pollution के harmful effects को discuss किया गया है। Yes, of course, due to environmental pollution की वजह से हम बहुत सारे diseases से भी suffer कर रहे हैं। So here you are right, but what can we do? क्या किया जा सकता है environment को बचाने के लिए? तो अरुण रिप्लाई करता है people from all walks of life, लोगों को आगे आना चाहिए और pollution को stop करना चाहिए ताकि उसके harmful effect को कम किया जा सके। Sumit says right you are, thank you. Arun says you're most welcome, see you later. So this is how the dialogue is being ended in this case. Moving on to the next question. Write a report on the celebration of Earth Day in your locality. Earth Day के celebration के लिए report लिखिए. Let's discuss the answer. Hello all. RRWA, this is basically the name of association. RWA ने celebrate किया Earth Day on 22nd April 2023 with great enthusiasm. बहुत ही excitement के साथ ये celebrate किया गया. Event को organize किया गया था ताकि planet को preserve करने के लिए awareness करी जा सके और उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया जा सके और लोगों द्वारा नेसेसरी एक्शंस को लिया जा सके ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे। द सेलिब्रेशन बिगैन विद मॉर्निंग प्रेयर, स्टार्टिंग में मॉर्निंग प्रेयर हुई, साथ ही साथ नेशनल एंथम इन विच
एवरीवन, जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया और RWA एसोसिएशन के मेंबर्स ने सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ डे के बारे में सबको बताया और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर भी एनलाइटन किया। बच्चों ने स्किट, पोएम और सॉन्ग को प्रेजेंट किया ताकि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस को और सस्टेनेबल लिविंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके। बहुत सारी इको फ्रेंडली एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हुई, जैसे कि ट्रीज को प्लांट करना, कॉम्पोजिट पिट बनाना, पोस्टर्स बनाना, ताकि अवेयरनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्प्रेड करी जा सके। इन एडिशन, इन एक्टिविटीज के साथ साथ एक एग्जीबिशन को भी हेल्ड किया गया इनोवेटिव आइडियाज को शोकेस करते हुए फॉर सस्टेनेबल लिविंग, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की लिविंग को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके। लोकेलिटी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एग्जीबिशन में और अपने प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर पावर लैम्प, ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन्स एंड अपसाइकल आर्ट पीसेस को शो किया। ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इसने सबको इंस्पायर किया एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन को सीरियसली लेने के लिए। We hope that our small effects towards protecting the planet would inspire others to make a difference. Rajat Sen, Secretary, RWA. So this is how the report is being ended. Moving on to section C, let's discuss question number 1. Imagine you are the manager of a hotel in Andaman Beach Resort. Write an email confirming the reservation of accommodation to the customer. So here we have to write an email confirming the reservation. Start करते हैं by the address, date, Mr. Arun Srivastava. Thank you for telephonic message. मैं आपको ये ईमेल लिख रहा हूँ to say that we can reserve 3 double rooms. हम 3 double rooms reserve कर सकते हैं from this date to this date and particular time. The cost per room would be 5,000. इसमें हमें amount specify करना है per night including taxes and service charges, जिसमें breakfast included है, and breakfast would cost 500 extra. I would be grateful if you confirm this booking by email along with the draft of 30,000 as advance payment for the accommodation. We look forward, हम आपको welcome करने के लिए excited हैं, and I would have enclosed 2 brochures here describing our resort and facilities. Resort और उसकी facilities को describe करते हुए हमने brochure को attach किया है email में. Sincerely, and this is how JM George Manager, the email is being ended. Let's discuss next question. Write an essay on the impact of globalization on the environment. Environment के ऊपर globalization के impact को highlight करते हुए essay लिखिए. Globalization के बहुत सारे effects होते हैं, negative भी और positive भी. One of the aspect of human life, यदि human life को consider किया जा सके, जो widely affect हुई है by globalization is population. It is evident, इस बात का सबूत है कि current demographic patterns do not resemble those witnessed several decades ago. Cities are growing. Cities alarming rate से बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जो गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है to consider the expansion of facilities to meet the increasing demand of small number of people. Increasing demand of population के accordingly facilities provide करना बहुत ही challenging है. This means that ज़्यादा से ज़्यादा लोग urban centers पे attract हो रहे हैं अलग अलग reasons की वजह से, and they may differ from one city and country to country. ग्लोबलाइजेशन ने साइज ऑफ द वर्ल्ड को रिड्यूस कर दिया है बाय कटिंग डाउन टाइम एंड स्पेस, जो पहले बहुत ज्यादा अवेलेबल हुआ करता था. While people are getting attracted to the cities, इसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पर. Of great significance fact that cities are leading consumers of energy. Energy consumption बहुत ज़्यादा बढ़ गया है and contribute approximately 80% to the greenhouse gases, जिससे कि greenhouse emission भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इसने widely led किया है to what is commonly known as climate. Moving on to the next question. Imagine that your friend is visiting Delhi with her family. Write a letter to your friend suggesting good hotels to stay in Delhi. Let's discuss the answer. Dear Priya, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दिल्ली विजिट कर रही हो. तुम्हारे साथ रहना बहुत प्लेजरफुल रहेगा. I did some research online और मैंने होटल क्लार्क के बारे में ढूंढा. ये होटल सिटी के सेंटर में है और तुम्हारे ऑफिस के पास है. इसका रूम टैरिफ ₹5,000 है विद ब्रेकफास्ट पर डे. तुम अपनी बुकिंग्स ऑनलाइन करवा सकती हो. असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignowala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today.
For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment you want to see next. Thank you for watching.